بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام آئل محمود کا مذہب۔ محمود اپنے بت پرست پیشروؤں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبود ان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محفوظ ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مثبت براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں، اور بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات وحد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ محمود نام ہے ایک شخص کا جو چوتھی پشت میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس شخص کی اولاد بعد ہلاک ہونے عاد کی قوم کے عرب کے ملکوں میں پھیل گئی تھی اور ان ملکوں کی مالک ہو گئی تھی، اور ان کا ملک اصلی یعنی وطن شام اور حجاز کے درمیان میں تھا، اور ان کے شہروں میں سے جو شہر شام کے قریب تھا نام اس کا حجر تھا، اور جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا نام اس کا وادی القری تھا، اور ان دونوں کے درمیان میں 1700 بستیاں یعنی گاؤں اور قصبے اور شہر ان کے تصرف میں تھے، اور بستی میں سنگین عمارتیں بنائی تھیں اور کھیتی کرتے تھے اور کنویں اور تالاب کھودتے تھے، لیکن اس زمین میں پانی کم تھا اور پتھر کے سبب سے کنواں اور تالاب دشواری سے کھودا جاتا تھا، اور اکثر مال ان کا عمارت کے بنانے میں اور باغوں کے لگانے میں اور پھر تراش کے مکان بنانے میں اور کنویں اور تالاب پہاڑوں کے اندر کھدوانے میں خرچ ہوتا تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے سنگ تراش کاریگر پہاڑوں پر عمارتیں منقش تراشتے تھے، آخر کو ہوتے ہوتے پتھروں کی صورتیں عجیب و غریب تراشنے لگے اور ان کو پوجنا شروع کیا، اور یہ رسم ان میں رائج ہوئی یہاں تک کہ بالکل بت پرستی ان میں پھیل گئی اور حق تعالیٰ سے بالکل غافل اور بے خبر ہو گئے۔ تب حق تعالیٰ نے حضرت صالح بن عبید علیہ السلام کو کہ صورت اور شکل میں سب سے بہتر تھے اور سب و نسب میں بھی سب سے اعلیٰ اور خوبتر اور لڑکپن سے نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں، مرتبہ رسالت کا عنایت فرما کے وہی نازل فرمائی اور حکم الہی ان کو ہوا کے اپنی قوم کو سمجھا کہ بتوں کی عبادت سے باز رکھو اور منع کرو، اور عبادت رب الارباب کی طرف ان کو رغبت دلاؤ اور مشغول کرو، اور یہ حکم الہی ان کو پہنچاؤ اور خوب اچھی طرح سے سمجھاؤ کہ یہ سب نعمتیں کہ تم کو حاصل ہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان نعمتوں کو غیر خدا کی طرف منسوب نہ کرو، اور سرکشی اور تکبر کو چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب حکم الہی کے تبلیغ احکام اور دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنا شروع کی، اور قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں بموجب تمہاری خواہش کے معجزہ تم کو دکھاؤں اور پھر تم نے میرا کہا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم سب عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں نے اس بات کا یقین نہ کیا اور کہا کہ ہم سب فلانی تاریخ ہر سال شہر کے باہر جاتے ہیں اور پوشاک اور زیور سے بتوں کو آراستہ کر کے باہر نکالتے ہیں اور حاجتیں تمام سال کی ان بتوں سے اس دن مانگتے ہیں اور وہ ہم کو دیتے ہیں، تو بھی اس دن ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب طلب کرے دیکھیں تو تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح نے اس بات کو قبول کیا اور اس دن جس کا وعدہ ہوا تھا سب کے ساتھ باہر نکلے، اور تھوڑے سے لوگ جو ایمان آپ پر لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچے دیکھا تو بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا ہے، اور نہایت ادب سے سب قوم ان کے سامنے کھڑی ہوئی اپنی حاجتیں مانگ رہی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بتوں سے کوئی چیز انوکھی مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ تمہارے بت کیسے قدرت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، پھر ان بتوں سے ایک چیز انوکھی مانگنا شروع کی، اور نالا اور فریاد اور عاجزی اور چاپلوسی حد سے زیادہ کی، لیکن سوائے محنت بے فائدہ کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ آخر عاجز ہو کر بیٹھ رہے تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو تم کہو میں بھی اپنے اس مالک الملک اور قادر علی الاطلاق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگوں، اور اس کی قدرت کو بھی دیکھو کہ کیا اپنے بندہ خاص کی فریاد رسی کو پہنچتا ہے، اور جو مانگوں سو دیتا ہے۔ جندب بن عمرو نے کہ
उनके सरदारों में बड़ा सरदार था। दूसरों से कहा कि उनसे ऐसी चीज तलब करनी चाहिए कि अक्ल के नजदीक मुहाल हो, ताकि उनसे लाई ना जाए और हमारे बुतों की भी इज्जत व आबरू बाकी रह जाए, वरना हम खफीफ और जलील हो जाएंगे। सब ने कहा कि तो हमारा सरदार है, और अक्ल और दानाई में भी सबसे ज्यादा होशियार तो कोई ऐसी चीज तजवीज करके कह कि ये आजिज हो जावे और ला ना सकें। तब जनद ने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि इस पहाड़ के पते है कि ईदगाह के सामने है, और इस पुश्ते को उनके उर्फ में कातिबा कहते थे। एक औनटनी हमारे वास्ते निकाल के इसकी पेशानी सियाह हो और सारा बदन इसका सफेद और बाल इसके बड़े हों और नरम, और इसके 10 महीने का अमल भी हो, और डील इसका बहुत बड़ा हो कि हम सबको एक टला के बराबर मालूम हो दे, और इस पत्थर से निकलने के बाद हमारे सामने बच्चा जने, और वो बच्चा भी इसकी मानिंद हो शक्ल और रंग और डील होवे में। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं उसी तरह की औनटनी अल्लाह के हुक्म से इस पत्थर से निकालूं तो तुम ईमान लाओगे, और जो ताला के दीन और हुक्म के फरमाना बरदार बनोगे। सब ने इकरार किया कि अगर ये अमल ज़ुहूर में आवेगा तो हम सब ईमान लाएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस बात पर अहद और पैमान किया, और कौल और इकरार उनसे मजबूत लिया। फिर उन लोगों को जो उन पर ईमान लाए थे अपने साथ लेकर इस पत्थर के नजदीक तशरीफ ले गए, और 2 रकत नमाज अदा की, और दरगाह में जनाब इलाही के दुआ में मशगूल हुए, और इन मुसलमानों को कहा कि तुम सब मेरे पीछे खड़े होकर आमीन कहो। और इस कौम हमूद के सरदार मफौज और लश्कर गर्दागर्दान को घेर के खड़े हुए और तमाशा देखने लगे कि क्या होता है कि यकायक अल्लाह ताला की कुदरत से इस पहाड़ के पुश्ते से आवाज जानवर के चलाने की आने लगी, जिस तरह जानवर जनने के वक्त आवाज करता है, यहाँ तक कि वो पशता फटा, और एक औनटनी जैसी इसने तलब की थी वैसी ही निकली और जंगल में चरने गई, और बाद एक साथ के उसके भी दर्दजा शुरू हुआ, और उसने भी एक बच्चा जना अपने बराबर कद वाओ कामत में और सूरत वाओ शक्ल में। इस माजरे को देखकर लोग एक आवाज होकर पुकार उठे, और सब इस बात के कायल हुए कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नबूत बड़ी कुदरत रखता है, उसी पर ईमान लाना चाहिए। और जनद बिन उमरू जुमा 6000 आदमियों के ईमान लाया और इस्लाम से मुशर्रफ हुआ, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कदमों पर गिर पड़ा, और पिछली तकसीरों से नादिम और शर्मिंदा हुआ, और इसकी बख्शिश तलब की। और दूसरे सरदार अपने नफ्स की शामत से उसी इनकार पर कायम रहे, और अपने फरमानबरदारों को भी समझाया और भड़काना शुरू किया कि ऐसे जादू पर फरीफता मत हो, और अपने दीन और मजहब को मत छोड़ो, और इस पर मजबूत रहो कि ये वक्त आजमाइश और इम्तिहान है। इन बदबख्तों ने अपने रईसों के भिड़काने से कफर के कलमे कहना शुरू किए, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जादूगर करार देकर फिर गए। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुमने खिलाफ अहद के किया और मुझ पर ईमान ना लाए। अब तुम्हारे बचाव की अजाब इलाही से ये सूरत है कि इस औनटनी और इसके बच्चे को निहायत ताजीम से अपने मुल्क में रखो, किसी तरह से इसको रंज मत दो और बुरी तरह से मत छेड़ो कि तुम्हारे अमन और बचाव का सबब है। और जब तक ये औनटनी और इसका बच्चा तुम में रहेगा, अजाब इलाही तुम पर ना आवनेगा, और जो किसी तौर से तुमने इसको बुराई पहुंचाई तो अजाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। इस जगह पर जानना चाहिए कि इस मुजज़े के खास होने में इस कौम के वास्ते भेद ये था कि उनको पत्थर तराशने और तस्वीर बनाने में बड़ा दखल था, और इस काम में बड़ी बड़ी बारीकियां और कारीगरियां करते थे। तो इस मुजज़े के खास करने में इस गिरोह के वास्ते इशारा इस बात की तरफ है कि हर चंद के तुम लोग पत्थर की तस्वीर में अजीब व गरीब बनाते हो, मगर जान इसमें नहीं डाल सकते, और हम फिर से एक जानदार जानवर के इस मुल्क के जानदारों से बड़ा हो निकल सकते हैं। और इसमें इशारा इस बात की तरफ भी हवा के हक ताला की हिदायत पत्थर के दिलों को नरम कर सकती है और इससे रूह के वसिफ जाहिर कर सकती है। अब आए हम बाकी रहे किस्से के बयान पर कि औनटनी कद और कामत और डील और डोल में भी बहुत बड़ी थी। चुनांचे हजरत अब्बू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हा के बड़े जलील अलकदर सहाबियों में से हैं। वो फरमाते हैं कि मैं कौम समूद के शहर में, जिसका हजर नाम है, गया था। इस औनटनी के बैठने की जगह के मशहूर है और लोग इसकी जियारत करते हैं। अपने हाथ से मैंने नापी थी तो 60 गज दूर इसका हुआ था।
और इस ओनटनी की खासियत ये थी कि सब जानवर अहली और जंगली इसके देखने से खौफ खाकर भागते थे, और जिस जंगल में वो चरती थी कोई दूसरा जानवर कदम नहीं रख सकता था, और जिस कुएं और तालाब और नदी पर वो पानी पीने को जाती थी तो सब पानी इसका पी लेती थी, और जिस चरागाह में वो चरती थी इसमें घास का नाम भी नहीं रहता था। और शाम के वक़्त जो शहर में आती थी सब शहर वाले अपने अपने बर्तन लाके इसके दूध से भर लेते थे, और तमाम शहर वालों को इसका दूध कफालत करता था। जब एक मुद्दत इस दौर से गुजरी तो मवाशी और जानवरों वाले इसके फड़ने और सैर करने से आजिज हुए, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से फरियाद की आपने मसलहत के तौर पर ऐसा ठहराया कि एक दिन तुम सब अपने जानवर चराया करो, इस दिन हम ओनटनी को बंद रखेंगे और दूसरे रोज हम इस ओनटनी को छोड़ देंगे। इस दिन तुम अपने जानवरों को बंद रखो। इस कौल और इकरार पर एक मुद्दत तक गुजर इन करते रहे, लेकिन शहर वालों पर जो जानवरों की परवरिश का ज़ौक़ और शौक़ रखते थे ये कीमत भी गरं गुजरी, और अपने दिलों में कहते थे कि किसी हीले और तदबीर से इस ओनटनी को यहाँ से दूर किया चाहिए ताकि हमारे जानवर अच्छी तरह फरागत से पानी और खाया करे, लेकिन अहद टूट गए और कौल और इकरार के खिलाफ होने से खौफ खाते थे। इस दरमियान में एक नौजू इन उसी कौम का निहायत शुरा पुश्त और दनगई था, और उसका नाम करार बिन सालिफ था। कोना गर्दन, चार शाना, माँ बाप को अजियत देने वाला, जबान दराज, हथछट पैदा हवा, और वो एक औरत फाहिशा पर आशिक हवा। और इस औरत का नाम अतीरा था कि खूबसूरती और खुश उसलूबी और लतीफ़ा गोई और नज़ाकत तब में वहाँ मशहूर थी। और इस फाहिशा के घर में 8 शख्सों से जो उसके हम मशरब और हम वज़ा थे, और इनमें से एक का नाम मसद बिन दाहर था कि इसके चचा का बेटा था जाता था, और इससे खत नफसानी हासिल करके रोसयाही दोनों जहान की कमाया करता था। और इसके यार और हम नशीन शराब खोरी करके इसके घर की लोंडियों बांदियों से मुंह काला किया करते थे। एक रोज इस जवान ने यानी करार ने इस फाहिशा से कहा कि कब तक ये आशनाई चोरी छपी रहेगी, खल के मुझसे निकाह क्यों नहीं कर लेती है कि उम्र भर हंसी खुशी से गुजरान करें। इस कहबा ने कहा, अगर इस बात का तुझको ख्याल है तो एक फरमाइश मेरी है, अगर इसको तो बजा लाए तो मैं ममाल व असबाब और लोंडियों के तेरी फरमाना बरदार वो कर रहूं। और वो काम ये है कि इस ओनटनी को जिसने मुझको और तमाम शहर को एक रंज और बल्ला में डाल रखा है और तमाम जानवरों बेज़बान को भूख और प्यास के अजाब में गिरफ्तार कर रखा है, किसी तरह मार डाल और इसकी कोंची कट के हम बल्ला से निजात पावीं। और इस मुहजबा के जो जानवर बहुत थे इस सबब से और लोगों से ज्यादा उसको इस ओनटनी से दुश्मनी थी, गरजे के कजारता बिकार ने इस सोई और खसीस काम के वास्ते ऐसा बड़ा गुनाह करने का इकरार किया और इस ओनटनी के मारने की तदबीर में पड़ा, और अपने यारों आशलाओं को भी इस काम में अपना रफीक किया। और एक रोज एक गली में जो इस ओनटनी के आने जाने की राह थी इसकी राह रोक के घात में बैठा, और अपने यारों को भी इस कोचे में घात की जगहों में बिठाया। तो जिस वक्त वो ओनटनी चरागा से फरी और इस कोचे में पहुंची तो पहले मसदा ने तीर इसकी पेशानी पर मारा, और दूसरे 7 शख्स तलवारें खींच के गल मचाते हुए ओनटनी तक पहुंचे, लेकिन वो ओनटनी बावजूद जख्मी होने के किसी को अपने पास आने नहीं देती थी, और जिस तरफ हमला करती थी सबको भगा देती थी। आखिर को करार नाफकार ने इसके पीछे पहुंचकर एक तलवार इसकी कौंचों पर मारी को नचों के कहते ही वो ओनटनी जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही जब इसके बार गर्द इसके पहुंचे तो तलवारों से इसको पुर्जे पुर्जे कर डाला। इस बात को सुनकर शहर वाले सब खुश हुए और इसके गोश्त को तकसीम करके शहर वाले अपने घर को ले गए। इसका बच्चा जो पीछे से आया और अपनी माँ का ये हाल देखा तो वहाँ से भागकर उसी पहाड़ की पुष्ट पर जा खड़ा हुआ। ये खबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पहुंची तो अफसोस करते हुए बाहर निकले और शहर वालों से फरमाया कि ये तुमने अच्छी बात ना की, बल्कि खुदा के अजाब को कसद करके अपने वास्ते मंगवाया। अब भी बचाव की सूरत है कि मेरे साथ आओ और इसके बच्चे को अपने शहर में लाओ ताकि इसके सबब से हक ताला के अजाब से बच जाओ। कजार ना बिकार और दूसरे काफिरों ने इस बात को न सुना और इस बात की कुछ हकीकत ना जानी। तब तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम सब मुसलमानों के साथ इस बच्चे के लाने को जंगल की तरफ गए। जुन ही बच्चे ने
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा, 3 मर्तबा आवाज की और वो पशता पहाड़ का फटा और वो बच्चा इसके अंदर घुस गया। तब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इस हाल को देखकर अफसोस करते हुए फिर आए और शहर वालों से कहा कि तुमने अपनी खराबी अपने हाथ से की और इस बच्चे के 3 मर्तबा आवाज करने की तबीर यह है कि तुमको 3 दिन मोहलत है। अज़ाब इला से पहले दिन मुंह तुम्हारे जर्द हो जाएंगे और दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे और तीसरे दिन सियाह। और ये माजरा थोड़े दिन रहे। बुध को हवा था। जुमेरात की सुबह शहर वाले जो सौके उठे तो देखा कि सबके मुंह जर्द हो गए हैं। तब सबको यकीन हुआ कि जो कुछ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था सब सच और वाक़ई होने वाला है। लेकिन उस वक्त उनकी कुव्वत गज़िया होकर ये बात ठहराई कि कब्ल आने तीसरे दिन के हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का काम तमाम कीजिए। ये इरादा दिल में ठान कर उसी रात को ये तो आदमी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबी करने को चले। उस वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी मस्जिद में थे। एक दरख्त इस मस्जिद में था। वो बुलंद आवाज से बोला, क़ज़ार अपने यारों के साथ आपके मारने को आता है, आप अपने घर तशरीफ ले जाइए और दरवाज़ा बंद कर ले जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इसके कहने के बमूजिब अमल किया और घर में दरवाज़ा बंद करके जा बैठे। जब करार ना बिकार अपने यारों के साथ मस्जिद में आया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को वहां ना पाया तो इरादा किया कि आपके मकान का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसकर अब से बेअदबी करने। वो उसी सोच में थे कि यकायक फरिश्ते बमूजिब हुक्म इलाही के आपकी हिमायत और मदद को पहुंचे और अपने परों को उन बदबख्तों के मुंह पर मारा। मजरद इस मारने के वो सब अंधे हो गए और हीर इनवाओ परेशान गिरते पड़ते बेतहाशा वहां से भागे। और इस भागने में किसी का सर दीवार में लगकर फट गया और कोई कुएं में गिरकर मर गया। यहाँ तक कि सबके सब मर गए और खसर अलदनिया वाला खिर्द हुए। दूसरे दिन शहर वाले जो उठे तो सबके मुंह सुर्ख आए और करार वगैरह के वारिसों ने जो उनकी तलाश की तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर के करीब इन सब को मरा हुआ पाया। फिर इस हाल को शहर के रईसों और सरदारों से जो काफिर थे जाहिर किया तो सरदार सब शहर वाले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर चढ़ाए और घर को घेर लिया और कहा कि तुमने इस ओनटनी के एवज में हमारे तो आदमी जो रात को मार डाले हैं, हम इन आदमियों के एवज में तुमको और तुम्हारे सब घर वालों को मार डालेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम उन लोगों के मारने को नहीं गए थे, ये खुद हमारे घर पर रात को चढ़ के आए थे। अल्लाह ताला ने गैब से उनको सजा दी। वो सब उसी जवाब और सवाल में थे कि जनदब बिन उमरू इस शहर का बड़ार की कि मैं अपनी फौज के इस्लाम से मुशर्रफ हुआ था और बड़ा मुतक़द और दोस्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का था। इस हाल की खबर पाके मैं अपनी फौज के हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की मदद को पहुंचा और उन रईसों और शहर वालों से मुकाबला किया। आखिर को चंद आदमियों ने दरमियान में आगे इस बात पर सुलह ठहराई की हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इस शहर से निकल जाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस बात को गनीमत जाना और जनदब बिन उमरू और दूसरे मुसलमानों को अपने साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। तीसरे दिन के सनीचर का दिन था। सुबह को शहर के लोग जो उठे सबके मुंह काले पाए। इस दिन फिर निहायत तशवीश में रहे कि क्या होने वाला है। आखिर ये बात सोचे कि संगीन मकानात खाली कीजिए और खुदा का अजाब जब आवेगा तो इन मकानों में छप रहेंगे, क्योंकि अजाब इलाही आसमान से आवेगा, जैसे पानी या पत्थर का बरसना या जमीन से होगा, जैसे जलजला और उन सब चीजों से इन मकानों में बचाव है। इस वास्ते कि ये मकान पहाड़ को तर अश के बनाए हैं, ऐसी चीजों से इन मकानों में कुछ दहशत नहीं है। ये ना समझे कि हक ताला के गजब से कोई चीज बचा नहीं सकती। हासिल कलाम का पनजशन 90 की सुबह को हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम बमूजिब हुक्म इलाही के दरमियान में जमीन व आसमान के एक बड़ी सूरत दहशतनाक से जाहिर हुए और एक ऐसी सख्त आवाज की कि इसके सबब से पहाड़ जुम्बिश में आ गए और तुनत व आंधी के तौर से चलनी शुरू हुई। सब शहर वाले दहशत खा के इन्हीं स्टैंड मकानों में घसे। फिर हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने एक आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त की कि उसके सबब से सब शहर वाले औंधे अपने अपने जानून पर गिर पड़े और उनके पते फट गए और सब जन्म वासिल हुए, एक भी उनमें से बाकी न रहा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जो ये माजरा सुना तो मुसलमानों से
फरमाया कि ये शहर गज़ब इलाही के नाज़िल होने की जगह हुई, यहाँ पर रहना हरगिज़ मुनासिब नहीं है, इसको छोड़ो और मक्का मुज़म्मा के हरम का एहराम बांधो और वहीं चल कर रहो। चुनांचे वो सब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के फरमाने के बमूजिब अमल में लाए और निजात दारीन हासिल की। अल्लाहुम्मा अर्ज़क़ना इत्तिबा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस सही में वारिद है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के सफ़र में हजर के दरवाजे पर पहुँचे, सहाबा से इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स इस शहर में ना बैठे और ना पानी पे मगर ये कि रोता हुआ और डरता हुआ, इस वास्ते के रूहें इन काफिरों की इस शहर में अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हैं, और जिस जाए पर अज़ाब इलाही नाज़िल होता है वहाँ से दूर रहना खूब है। और ये भी हदीस शरीफ में आया है कि समूद के कौम के काफिरों से कोई आदमी नहीं बचा मगर एक शख्स जिसका अबू आल नाम था, किसी काम के वास्ते मक्का मुज़म्मा में आया था। सो जब तक हरम शरीफ के अंदर रहा तब तक अज़ाब इलाही से महफूज रहा। जो ही हरम से बाहर निकला और ताइफ की तरफ चला, रास्ते में उसी अज़ाब में जिसमें इसकी कौम हलाक हो गई थी, ये भी हलाक हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की मुहिम पर जाने के वक्त जब इसकी कब्र पर पहुँचे और आदत वहाँ के लोगों की ये थी कि जब इस कब्र के नज़दीक पहुँचते तो इसको संसार करते थे, तब आपने फरमाया कि तुम जानते हो कि ये कब्र किसकी है? सहाबा ने जवाब में अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल खूब जानता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब किस्सा इसका मुफस्सल अपनी ज़बान फैज़ तर्जुमान से इरशाद फरमाया और कहा कि इस मेरी बात की सच्चाई की निशानी ये है कि इसकी छड़ी सोने की उसके साथ ही दफन होती है। सहाबा ने जो ये कलाम सुना दौड़े और इसकी कब्र को तलवारों से खोदा और वो सोने की छड़ी इसकी निकाल लाए और इसकी कब्र को फिर उसी तरह बंद कर दिया। ये है समूद का किस्सा जो बयान हुआ। ये किस्सा बाजी सूरतों में ज़्यादा तफसील से मज़कूर है, मगर इस मकाम पर हक़ ताला ने थोड़ा इस किस्से से जितना मुनासिब था बयान फरमाया कि समूद की कौम ने सरकशी से और शहवत और गज़ब की ख्वाहिशों के गालिब करने से अक़ल और शरअ के हुक्मों पर हुक्म इलाही का इनकार किया और पैगंबर अलैहिस्सलाम को और इसकी लाई हुई चीज़ को झूठा जाता अज़ा तबास इस्तक़बह जब उठा अतराता हुआ बदबख्त इस कौम का, यानी क़ज़ारीन सालिफ और अक़ल और शरअ के बरअक्स शहवत और गज़ब की फरमान बरदारी की, यानी ओनटनी की को नचिकाएं और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के क़त्ल पर मुस्तद हुआ। फ़क़ालम रसूल अल्लाह, फिर कहा इसको अल्लाह के रसूल ने, यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, और इस जाय पर रसूल अल्लाह फरमाया उनका नाम यानी सालेह ना फरमाया, ताकि इस बात की तरफ इशारा हो कि ये कहना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का गोया खुदा का कहना था और उनका डराना खुदा का डराता था। इस वास्ते कि रसूल जिसका होता है उसका पैगाम पहुंच जाता है और जो कुछ कहता है उसी की ज़बानी कहता है। गोया रसूल का हुक्म मालिक का हुक्म है, और अगर नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इरशाद होता तो ये फ़ायदा बुझा ना जाता नाक़्ता अल्लाह, यानी छोड़ दो और हान को मत अल्लाह की ओनटनी को, ताकि जहाँ चाहे चरे और जिस पानी को चाहे पैदे और किसी तरह का रंज और अजियत मत दो और उसकी हलाकत के पीछे मत पड़ो। इस वास्ते के मनवार और ज़मींदार भी अपनी नाक़िस अक़ल और शोर से इतना जानते और बोझते हैं कि ज़ोरा हुकूमत वाले के जानवर को चारे पानी पर से हांकाना चाहिए, बल्कि किसी तरह न छेड़ना चाहिए। तो खुदा के जानवर को, जो सब हाकिमों का हाकिम है और सब ज़बरदस्तों का ज़बरदस्त और हर वक्त सज़ा दे सकता है और जो चाहे कर सकता है, बतरीक़ कौली छेड़ना ना चाहिए और इसके कत्ल के पीछे ना पड़िए कि ये बात बिल्कुल अक़ल के खिलाफ है। फिर गनवारों और ज़मींदारों और बकरियों के चराने वालों के बराबर भी ना समझना कमाल नादानी और बेवकूफ़ी है, और वो ये बल्ला अक़ल के मग़लूब करने से और शहवत के गालिब करने से सर शरीर पर पड़ती है। और इस ओनटनी की निस्बत खुदा की तरफ इस वास्ते हुई कि वो किसी की मुल्क में सिवाय खुदा के ना थी, और एक वजह यह भी है कि बेमां बाप के पत्थर से पैदा हुई थी और हक़ ताला की कुदरत का ज़ुहूर था, और दलील थी क़यामत के कायम होने पर और मर्दों के जिंदा होने पर गौर है। इन सब बातों के जुमा होने के सबब से इसको एक मर्तबा आली ऐसा हासिल हुआ था कि दूसरे जानवरों में वो बात पाई नहीं जाती है जिस तरह सब दुनिया के मकानों में बीत अल्लाह का मर्तबा है। वस्तेहा और छोड़ दो पानी इसके पीने का, ताकि तुम्हारे
जानवर उसके पानी के हिस्से में शरीक न होने पावी, इस वास्ते कि तुमने अहद बांधा है और कौल और इकरार किया है, राजी होकर के एक रोज ये औनटनी पानी पे और दूसरे रोज तुम्हारे जानवर फिर अहद वाव पैमान का तोड़ना और कौल और इकरार के खिलाफ करना सब शरीयतों में और सब दिनों में हराम है, और शहवत और गज़ब को अक्ल पर गालिब करके अहद को तोड़ना कमाल बेदीनी है। फकसबू फिर झटलाया इस कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इस डराने और समझाने में और उनकी नसीहत को कि इस आयत का मजमून था ला तमसुहा बसू फियाख्स का मजाब अलीम कबूल ना किया। फ़क्र और फिर कहें इस औनटनी की कौंची हर चंद के कौंची काटने वाला वही करार बिन सालिफ था और इसके 8 यार जो उसके मददगार थे, लेकिन जो सब शहर वालों की मर्जी के मुवाफिक ये काम था और सब सुन के खुश हुए थे, तो गोया सब इसमें शरीक थे। इस वास्ते गिरोह में से एक शख्स का काम जो सबके मशवरा और सलाह से होता है, तो सब गिरोह की तरफ निस्बत करते हैं। बमूजिब मजमून इस शेर के शेर चौस कौमे यक्के बैदानशी करो न कहरा मंजिलत मानद ना मारा, और सूर कमर में फताती नकर जो वाक़े है, तो इससे मुराद नफ्स इस फेल का करने वाला है, और बस तो उन दोनों में तारज़ लाजिम ना होलिफ फद मदम अलीम रफम फिर अलट मारा। इन पर ज़माने को उनके परवरिदगार ने जैसा कि इन लोगों ने अल्लाह ताला की अच्छी तरबियत को अलट डाला था, यानी अल्लाह ताली ने उनको क़ुव्वत शहविया और गज़िया इस वास्ते दी थी कि इन दोनों को अक़ल का फरमाना बरदार करें, और अक़ल को इस वास्ते दिया कि शर का फरमाना बरदार करें, और इन लोगों ने इसका बरअक्स किया, यानी शर को ताबे अक़ल और अक़ल को ताबे शहवत और गज़ब के किया। बज़म्म उनके गुनाहों के सबब से और गुनाह हिकमत इलाही की तरतीब को बदल डालना और इसकी संत पर अमल करना था। जैसे कोई शख्स अपने गुलाम को तलवार दे के मेरे दुश्मन को जाकर तलवार से कत्ल कर, वो गुलाम जाकर इसके लड़कों को मार डाले। फसूब फिर बराबर कर दिया इस फिरके को और खाक में मिला दिया, इस वास्ते के इस औनटनी के कत्ल में सब शरीक थे बातिन में। और हदीस शरीफ में आया है कि जिस वक्त ज़मीन पर कोई गुनाह होता है, फिर जो कोई इस मजलिस में हाजिर हो लेकिन दिल से बेजार हो और इसको बुरा जानता हो, तो वो शख्स गोया इस गुनाह से मंजिलों दूर है। कुछ गुनाह की बुराई इसको ना लगेगी, और जो इस मजलिस से दूर हो और दिल से राजी और खुश हो इस गुनाह के करने से, वो ऐसा है कि गोया इस मजलिस में मौजूद है और गुनाह में शरीक वला यखाफ़ु आइन, और नहीं डरता है अल्लाह ताला इस कौम की हलाकत के अंजाम से, इस वास्ते के अंजामकार से वो शख्स डरता है जिसको ये मालूम ना होवे का अंजाम इसका अच्छा है या बुरा, और नादानिस्ता वो काम कर बैठे, या वो शख्स डरे जिसको इसके अंजाम का संभालना मुश्किल हो, और जो मकसदा इस काम के पीछे उठे इस काम का तदारुक करार वाकई ना कर सके। सो अल्लाह ताला उन सब बातों से कि मूजिब नुकसान के ही पाक है, वो तो अलामुल गयूब है और परले दर्जे की कुदरत और गना रखता है। इसको क्या परवाह है जो एक फ़िरका इसकी मखलूक़ात से कम हो जाएगा, और इसका कुछ अफसोस भी नहीं है कि मैंने मुद्दतों इस फ़िरक़े को पाला है। सो जब परवरिश मेरी अकारत गई और जिस काम के वास्ते परवरिश किया था वो काम ना हुआ। अब यहाँ पर जान लेना चाहिए कि हदीस सही में जो मसनद इमाम अहमद वगैरह मुतबिर किताबों में पाई जाती है, वारिद है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा से इरशाद फरमाया कि कुछ तुमको मालूम है कि सबसे ज़्यादा बदबख्त पहली इम्मतों का कौन शख्स है, और इस उम्मत में ज़्यादा बदबख्त कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की कि मुझको मालूम नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा बदबख्त अगली इम्मतों का एक सुर्ख रंग अमूद की कौम से था, यानी कदार बिन सालिफ के हक़ ताला की औनटनी की कौंचिकाएं, और इस उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त वो शख्स है जो तेरे सर पर तलवार मारेगा और तेरी दाढ़ी इस खून से रंगीन होगी, और उसी तलवार से तो शहीद होगा। अब यहाँ पर ज़रूर हवा के अगली इम्मतों से करार के ज़्यादा बदबख्त होने की वजह और इस उम्मत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के कातिल के ज़्यादा बदबख्त होने की वजह बयान की जावे, और इसका बयान मौकूफ़ है कई मुक़द्दमों की तमहीद पर। पहला मुक़द्दमा ये है कि फ़र्ज की शहवत सब शहूतों से खीस और बदतर है, इस वास्ते के इस हालत में आदमी अक़ल से बहुत दूर जाता है और जानवर की सी हरकतें आदमी से उस वक्त ज़ाहिर होती हैं, और इस शोहरत की जाए भी नजासत और नापाकियों से
भरी हुई है और औरत की जगह का खलना इस शहवत को लाजिम है, जिसका तमाम बनी आदम के नजदीक छुपाना वाजिब है। इस वास्ते आदत पैदाइशी आदमी की है कि इस शोहरत के निकलने के वक्त बहुत पर्दा करता है और सबसे छपता है, और इसका नाम मजलिस और महफिल में खोल कर नहीं लेता सिवाय इशारे और कनाए के, और जो गाली दुनिया में सुनी जावे सो उसी शहवत से कुछ कमती ज्यादती करके निकली होगी। दूसरा मुकद्दमा यह है कि शहवत किसी कसम की हो, इस कसम की मज़कूर की हो, ख्वाह दूसरे कसम जैसे खाने की हो या पीने की हो या खुशबुओं के सूंघने की, और जो सिवाय इसके हैं ये कमतर और खसीस गज़ब और गैरत से हैं। उसी वास्ते उर्फ में उन लोगों को जो इन शहवतों के मखलूब होते हैं बदतर जानते हैं, इन लोगों से जो गज़ब और गैरत की शहवत से मगलूब हुए हैं। जैसे बादशाह याशा और तमाशाबैन को बुरा जानते हैं, बादशाह सफ़ाक खुनैज़ से, और उसका भेद ये है कि गज़या क़ुव्वत सबब है गलबे और कहर और सियासत की, शहर ये क़ुव्वत बाइस है ताल्लुक़ और चापलूसी और खुशामद की, और सब लोगों के नज़दीक फ़ालिया क़ुव्वत बेहतर है इस वास्ते कि ये ज़बरदस्त है, मुनफल्ला क़ुव्वत से इस वास्ते कि ये ज़बरदस्त है। तीसरा मुकद्दमा ये है कि जो शहवत और गज़ब के सबब से वाजिब हक़ तलफ होने लगी तो सब लोगों के नज़दीक वो शख्स मयूब और मतऊन हो जाता है, और जिस कदर वो हक़ बुजुर्ग होगा इस कदर तन और तशनी ज़्यादा लाहक होगी। तो अव्वल बदबख्त वो शख्स है जो अपने नफ्स के कहने पर शहवत और गज़ब को मुक़द्दम रखे और अपने नफ्स के हक़ को तलफ करे। इससे बदबख्त वो शख्स है कि अपनी लज़ात शहरी और गज़बी के सबब से दूसरे का हक़ तलफ करने, और इससे भी ज़्यादा बदबख्त वो शख्स है कि उन दोनों लज़ातों के सबब से बहुत आदमियों के हुकूक को तलफ करे। फिर हक़ भी आपस में मुख्तलिफ हैं, जैसे दुनिया का हक़ के इसका तलफ होना सहल और आसान है, आखिरत के हक़ तलफ होने से कि उसका दफ़ी बहुत मुश्किल होता है। चौथा मुकद्दमा ये है कि आदमी पर तीन हक़ बड़े और उम्दा साबित हैं। पहला हक़ अल्लाह ताला का है कि इसका पैदा करने वाला और नेमत देने वाला और सबका काम दुरुस्त करने वाला वही है, और किसी वक्त और किसी दम आदमी इसके एहसान से बाहर नहीं हो सकता, और हर काम में आदमी उसकी मदद और मेहरबानी का मोहताज है। उसी वास्ते कोई हक़ और किसी का हक़ इस हक़ की बराबरी नहीं कर सकता। दूसरा दो हक़ अपनी कौम और बरादरी का है कि अपनी ज़िंदगी और मौत में उनका मोहताज है और हर तरह की मदद का उनसे उम्मीददार। तीसरा तीन हक़ अपने नफ्स का, और इसकी हकीकत खुद जाहिर है, कुछ हाजत बयान की नहीं है। बस सब बदबख्तों से बदबख्त वो शख्स है कि इन तीनों हक़ों को एक खसीस शहवत के एवज़ में तलफ करे। सो ये वसिफ़ अगली तुम में क़दार बिन सालिफ में था कि औनी और खसीस काम के वास्ते इन तीनों हक़ों को तलफ कर डाला। अव्वल अपने नफ्स के हक़ को तलफ किया और काफिर मेरे और दोज़ख का कंधा हवा एन और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया। दूसरे दो अपनी कौम के हक़ को तलफ किया कि उसके सबब से सब हक़ ताला के अताब में गिरफ्तार हुए और किसी का निशान भी बाकी न रहा। तीसरे तीन हक़ ताला का हक़ तलफ किया, यानी इस ओनटनी को जिसको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया था और अल्लाह ताला की हिदायत की सूरत थी और रहमत और इनायत इलाही के नज़ूल के सबब थी और बीत अल्लाह की सी बुजुर्गी पैदा की थी। इसकी कौंची काटने और हलाक किया, और इस उम्मत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का कातिल इब्न मुलजिम ऐसा ही बदबख्त है। तोज़ी इस ईमान की और तशरीह इस मकाम की ये है कि वो अल्लाह ताला की ओनटनी जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कमाल की सूरत थी और उनकी नबुवत पर गवाह सादिक थी, और कौम समूद की हिदायत के वास्ते जो हक़ ताला की इनायत मुतवज्जह हुई थी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मर्तबा रिसालत का मरहमत करके इस कौम की तरफ मबऊस किया था, और वही हिदायत उनके सवाल के बमूजिब नाक़े की शक्ल होके इनमें ठहरी थी और करार पकड़ा था, यहाँ तक कि इसकी तज़ीम और इसके हक़ को अदा करना गोया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की शरीयत का कबूल करना था, और अज़ाब इलाही के दफ़ा करने के वास्ते उनके दीन को कबूल करने के कायम मकाम थी। गोया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वलायत कानवर इस राह से जलवा गिर और ज़ाहिर होता था, और अल्लाह ताला के नज़दीक उनके मर्तबे की बुजुर्गी और उनकी दुआ की कबूलियत इस झरोके से ज़ाहिर होती थी। उसी तरह से वजूद जिस्मानी हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हा का कि ख़त्म करने वाले खिलाफत हुक्का के थे,
और जनाब नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलायत के कमाल की सूरत थी और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का नूर इस राह से जलवागिर था और इस जनाब के करब मुनवी की रोशनी इस राह से जाहिर थी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत और नियाबत इस वक्त में उसी ज़ात काबिल अलसिफात में मुनहसर थी। आजकल के गुमराह सरमाया दारों, जागीरदारों और हुक्मरानों की तरह सरदार और बड़े बड़े सरमाया दार उसी तरह बातिल परस्ती पर कायम रहे और इन्होंने खुदा की दी हुई हर कसम की खुशमैशी और रिफाहियत का शुक्रिया अदा करने की बजाय कुफरान नेमत को शियार बना लिया। वो हजरत सालेह का मजाक उड़ाते हुए कहा करते कि सालेह, अगर हम बातिल परस्त होते, खुदा के सही मजहब के मुनकर होते और इसके पसंदीदा तरीका पर कायम न होते तो आज हमको ये धुन दौलत सरसब्ज वाव शादाब बागात की फरावानी सैम वाव जर की बहुतात बुलंद वाव वाली शान महल्लात की रहाइश मेवा जात और फलों की कसरत शीरीं नहरों और उम्दा मुर्गजारों की अफजाइश हासिल ना होती तो खुद को और अपने पैरों को देख और फिर उनकी तनखाली और गुर्बत पर नजर कर और बतला के खुदा के प्यारे और मकबूल कौन हैं, हम या तुम जालिमो। तुम अपनी इस रिफाहियत और ऐश सलमानी पर शेखी ना मारो और खुदा के सच्चे रसूल और इसके दीन बरहक का मजाक ना अराओ, इसलिए कि अगर तुम्हारे कबर वाओ गुरूर और इनाद का यही हाल रहा तो पल भर में ये सब कुछ फना हो जाएगा और फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा ये साजो सामान। बेशक ये सब कुछ खुदा की नेमतें हैं, बशरती का उनको हासिल करने वाले इसका शक्र अदा करें और इसके सामने सर नियाज झुकाएं और बिलाशुबा में सामान अजाब व लानत हैं अगर उनका इस्तकबाल शेखी और गुरूर के साथ किया जाए। इसलिए ये समझना सख्त गलती है कि हर सामान ऐश खुशनूरी इलाही का समरा है। वो मैच किया थी कुरान पाक ने इस हलाकत आफेरी आवाज को किसी मकाम पर सायका करकदार बिजली और किसी जगह रजफा जलजला डाल देने वाली शय और बाज जगह तागी दहशतनाक और बाज जगह सहीहा पीच फरमाया, इसलिए कि ये तमाम ताबीरात एक ही हकीकत के मुख्तलिफ औसाफ के एतबार से की गई हैं ताकि ये मालूम हो जाए कि खुदाए ताला के इस अजाब की हौलनाकियाँ कैसी गुनागुन थीं। तुम एक ऐसी कोंदने वाली बिजली का तस्वुर करो जो बार बार इज़्तिराब के साथ चमकती, कड़कती और गरजती हो और इस तरह कौनत रही हो कि कभी मशरिक में है तो कभी मगरिब में, और जब उन तमाम सिफात के साथ चमकती, कुंदती, गरजती, लरजती, लरजाती हुई किसी मकाम पर एक हौलनाक चीख के साथ करे तो इस मकाम और उसके नवा का क्या हाल होगा। ये एक मामूली अंदाजा ही इस अजाब का जो समूह पर नाजल हवा और उनको और उनकी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करके सरकशों की सरकशी और मुगरूरों के गुरूर का अंजाम जाहिर करने के लिए आने वाली नस्लों के सामने अबरत पेश कर गया।